Srivastava. Welcome back to our channel College Law. In this video, we are going to study State Information Commission under the RTI Act 2005. As we know that we are completed with Central Information Commission, which is a very important. Now we are shift to State Information Commission. That is also too much important for the RTI aspects. We know that these commissions are head of the RTI Act. मतलब सर है आरटीआई एक्ट का। मतलब कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने इसमें बताया था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड हाउ दे आर वर्किंग एंड हाउ दे आर अपॉइंटेड। बाद में फर्दर वीडियो में पावर एंड फंक्शन को बताऊंगी, लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी एक्ट आता है तो उसके अंदर के कमीशन और कमिटी वर्क करती है। पार्लियामेंट में लॉज पास कर दिया, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, बट हाउ दिस एक्ट is actually executed, it depends upon the commissions and committees all. तो कमीशंस बनाई गई है कि उस वर्क को कैसे कंप्लीट कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्ट्रक्चर्स में लाना है। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, आपका कोई एक्ट बना तो एक्ट सिर्फ एक कह सकते हैं स्टैट्यूट है, दैट इज रिटन इन फॉर्म, but there are some physical body who are actually working. It is most important thing. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जुडिशरी, we have three state organs are in a country. One is the legislature, second is the executive, and third is the judiciary. We are only know that is the organ. So we have three organs are there. So actually we see that the organs are only not a physical touch. They are only such a imaginary things, or we cannot be touched like organs. But when we are deep, when we are going in a deep, then we understand that in a parliament there are so many members are who are doing actually in work. In executive there are some members are there. In judiciary the judges are there. So though the structures are there, but actually in a function there are some person who are working with us, who are working for their प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द सेटअप, फॉर देयर बॉडी। तो उसी तरह से समझो कि देयर आर कमीशंस which are set up for the RTI Act who are actually work for the right to information and giving information to the who are needy one. Understood? तो इसी तरह से हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी देखे थे, अब हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में देख रहे हैं। तो in every state we can understand in a very layman language, we know that the country is very wide. Our Indian country, it is a very wide, there is a very cultural heterogeneity are there. The states are there for the administration of the betterment of for the state. Actually there are state information commission for the running the state smoothly. मतलब स्टेट को रन करने के लिए there are some commission also who are working separately for the state information commission, who are there for the working for the state administration, for the right to seek information for the public or the needy one. ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये चीज। तो कैसे पॉइंट हो रहा है, जैसे कि हर स्टेट में जो गवर्नमेंट है by the notification constitute a body called a state information commission. हर एक स्टेट में गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन by the notification through the gadgets. We are publishing the gadgets with the help of notification. We are constitute a body called state information commission who are separately work for only the state. ठीक है, तो स्टेट के लिए अपॉइंट हुआ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल के लिए अपॉइंट हुआ क्या कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। लेकिन उस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में देयर आर सम स्टेट कमिश्नर्स, SIC, दैट इज कॉल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। मान लीजिए कि हमारे एक्ट में लिख गया दैट मेंशन इन कि 2H में पब्लिक अथॉरिटी को दिखाया गया है कि अगर आप पब्लिक अथॉरिटी से अपना कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हो, इंफॉर्मेशन भी डिफाइन है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, जैसे रिकॉर्ड्स आप मांग सकते हो, ईमेल्स मांग सकते हो, सर्कुलर्स मांग सकते हो, एनी इंफॉर्मेशन
That is the exclusive definition which is mentioned under the RTI Act of Information Definition. तो अगर आप मांगते हो तो हो सकता है कि पब्लिक अथॉरिटी ना दे आपको, तो इसीलिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दिया हुआ है, एक स्टेट में बनाया गया है जो आपका मदद करे। अगर वो आपको पब्लिक अथॉरिटी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, you can help with, you can direct, you can complain to the state information commission for what, for not giving a information। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया कि ताकि स्टेट लेवल पे चाहे किसी भी पर्सन का राइट वायलेट ना हो जाए। अगर कोई जरूरत पड़ती है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से आप जाके डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो, और स्टेट इंफॉर्मेशन जो है क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्सिबल समझेगा, उसके लिए फर्दर एक्शन भी ले सकता है। तो ये क्यों बनाया गया, इसका मेन ऑब्जेक्ट हम अब समझते हैं। समझिए इस चीज को। पब्लिक अथॉरिटी से आपने डिमांड तो की इंफॉर्मेशन की, लेकिन वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसीलिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया कि नेशनल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। दैट इज द मेजर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द आरटीआई एक्ट। समझ में आ रहा है? अगर हम देखिए अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वहां पे कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज, एंड हियर द गवर्नर, क्योंकि स्टेट में गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर के रिकमेंडेशन से बनेगा, और किसके रिकमेंडेशन, फिर कमिटीज के रिकमेंडेशन। दैट इज टू बी वेरी बट नोन कि यहाँ पे कमिटीज की क्यों रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि समझिए कि पार्लियामेंट में आपको लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन एक्ट एंड एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर मच मोर अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, तो वैसी कमिटीज आर मोर अवेयर फॉर दैट। गवर्नर इज एन अथॉरिटी हु आर रिस्पांसिबल, हु आर मेजर अथॉरिटी, हु हैव टू बी पुट इन दैट पोजीशन कि अपॉइंट सम पर्सन लाइक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, बट they are actually work in the recommendation of the committees. That is a major concept here. इसको बहुत जरूरी है याद करना। फिर आता है कॉम्प्राइजिंग, कि चीफ मिनिस्टर होंगे जो चेयर करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे वहां पे क्या था, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या था, आपका लोकसभा था, तो वहां पे क्या थे, राहुल गांधी। यहाँ पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, पार्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अपोजिशन होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे बिहार में चली जाइए, बिहार का अलग अपोजिशन होगा, हर स्टेट के अलग होंगे असेंबली, एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सीएम। समझ में आ रहा है? इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है? अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी, बात करते हैं कि द पर्सन ऑफ एमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ सेम विद दिस क्वालिफिकेशन एज अ सेंट्रल लेवल। जैसे कि सेम क्या था, आपको वो था, क्या कहते हैं कि पब्लिक लॉ में होना चाहिए, नॉलेज हो करना चाहिए, साइंस में होना चाहिए, सेम चीजें एलिजिबिलिटी, सेम चीजें बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकती, और टाइम को बढ़ाने का और रिपीट करने का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर व्हाट, स्टेट पर्पस। ठीक है, अब आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 16। SICS होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, 5 years के लिए भी कर सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस और टिल द एज ऑफ 65। या तो आप 65 एज के हो जाओगे तो रिटायर होगे, या तो अपने 5 साल सर, दोनों में से जो अर्लियर होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए 65 ईयर हो गया, वो 4 साल के हुए, तो हम 65 ईयर वाले को काउंट करेंगे। 65 ईयर के नहीं भी हुए लेकिन उनका क्या कहते हैं 5 years के हो भी गए, तो हम उनको काउंट कर लेंगे। तो ये चीज होती है, ठीक है, हर जगह यही चीज है। नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, कोई भी SIC या CIC इज नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। हम एक पर्सन को बार बार रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ये बेसिक रूल है। सच सैलरी अलाउंस सेम एज इलेक्शन कमीशन में जैसे था वैसे SIC सेम चीज है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। रिमूवल बात किया गया है सेक्शन 17 में, सिमिलर टू द सेंट्रल। वहां पे क्या था कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन चाहिए था। यहाँ पे क्या है कि इनकैपेसिटी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट फॉर अदर ग्राउंड्स, इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मोरल टर्पीडेट, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटी। सिमिलर टू द सेंट्रल ही है, सिमिलर टू द सेंट्रल है, बट अप्रूवल है कि प्रूव्ड होना चाहिए, इनकैपेसिटी में काम किया, मिसबिहेव्ड किया है, तो कोर्ट उसको कोर्ट जो है रिपोर्ट देखेगी। आफ्टर द अप्रूव्ड दे कैन बी रिमूव्ड एज, ठीक है। इन अ प्लेन टर्म समझ में आया, देयर इज अ कमीशन एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू सुपरवाइज एंड इन्फोर्स द आरटीआई। तो मेन क्रक्स है ना सुपरवाइज और इन्फोर्स करने के लिए आरटीआई एक्ट है ना। तो पब्लिक अथॉरिटी को क्या मतलब है, मेरे को नई इन्फॉर्मेशन देना, अगर ये दोनों ना रहे ना, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल,
मेरे को नहीं देना। अपनी मैं चीजें क्यों खोलूं, मैं धांधली कर रही हूँ, मैं करप्शन कर रही हूँ, मैं क्यों इन्फॉर्मेशन करूँ जब हम से पब्लिक डिमांड कर रही है। तो इसीलिए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है कि जहां मैंने गलती किया एज ए पब्लिक अथॉरिटी, I am liable, the Central Information Commission, State Information pushing me to give a record. If I am not give, then I will be eligible for the punishment. Understood? चलिए ठीक है, ये आपका खत्म हुआ, दैट इज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के बाद हम अपील एंड पढ़ेंगे मिसलेनियस फील्ड्स। ठीक है, ये खत्म होने के बाद आपका पूरा खत्म हो जाता है, आपका पूरा चीज खत्म हो जाता है आरटीआई एक्ट का। Further move on the patent and trademark. Most probably we can come with the trademark. ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड शेयर वीडियो विद माई फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको पीपीटी चाहिए मेरी, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप चैनल which is mentioned on my YouTube channel, डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।